ദില്ലി ദാലി പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ലക്കത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. 2026 ജൂലൈ 20 ഡൽഹിയിൽ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ച പാർലമെൻറ്റ് മാർച്ചിനെ കുറിച്ച് ഒരു ദൃശ്യോപന്യാസം ദില്ലി ദാലി പോഡ്കാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നിർണായക ദിവസമായിരുന്നു 2026 ജൂലൈ 20 എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദൃശ്യോപന്യാസം ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് ആ ദൃശ്യോപന്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ജൂലൈ 20 ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് നടന്ന മാർച്ചും അതിനു മുൻപ് ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്ദറിൽ നടന്ന നീണ്ട സത്യഗ്രഹ സമരവും ഈ സമരങ്ങളിലെല്ലാം പങ്കെടുത്ത പെൺകുട്ടികളെക്കുറിച്ച് മാത്രമുള്ള ഒരധ്യായമാണ് ദില്ലി ദാലി പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ദൃശ്യോപന്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം. അസാധാരണമായ ധൈര്യവും ആശയവ്യക്തതയും കൈമുതലായുള്ള ഈ പെൺകുട്ടികളാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വർത്തമാനവും ഭാവിയും തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെളിവാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻവോൾവ്മെൻ്റായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ മാത്രമല്ല, ഡൽഹിയിലെ മാർച്ചിൻ്റെ അനുരണനം എന്നോണം ഇന്ത്യയിലെ മഹാനഗരങ്ങളിലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടന്ന മാർച്ചുകളിലുമെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തം. അത്തരം ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ദില്ലി ദാലിയുടെ ദൃശ്യോപന്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണിത്. പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഈ രണ്ടാം ഭാഗം ഈ യുവജന മുന്നേറ്റത്തിന്, ഈ വിദ്യാർത്ഥി മുന്നേറ്റത്തിന് ഇത്രയും വലിയ ഗതികോർജം നൽകിയ എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കുമായി സമർപ്പിക്കുന്നു. हेलो, जो भी ये देख रहा है प्लीज़ हमें आप वायलेंट ना समझें. हम स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम अच्छी नौकरियां करना चाहते हैं और हम इस देश में खुशी से रहना चाहते हैं. हमें डेमोक्रेसी में बहुत बिलीव है और हम चाहते हैं जो भी चीज़ें हुई है अभी हमें डेमोक्रेसी से दूर करने के लिए वो चीज़ें रिस्टोर हो और जब भी किसी की गवर्नमेंट में गलती हो तो उसकी अकाउंटेबिलिटी ले, हमसे बात करे और हमसे माफ़ी मांगे, क्योंकि हमने उन्हें चुना है तो वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं. As a daughter of a fucking right-wing family, I think I am so fucking angry right now. I have been talking to my parents for the past few days, trying to ask them, do they know what's happening? Delhi में क्या हो रहा है? तुम लोग न्यूज़ पे देख रहे हो? And honestly, the conversations don't need to start on social media. The conversations need to start with our parents because the mainstream media is fucking insane. A week ago, I asked my mom, do you know what's happening in Delhi? Do you know what's happening with Sonam? And her first question was, who is Sonam? I sat down and I lectured her, and today I'm speaking with her again and I asked her, तूने देखा दिल्ली में क्या हुआ? And her first response is, कितने पुलिस वाले मरे हैं. That is what your fucking mainstream media is showing to the people. I feel like this is diabolical on so many fucking levels. Like, our parents don't know what's going on. Our own fucking generation is getting gaslit by the government and their narratives, and they don't understand where the frustration is coming from. हमें डर नहीं लगता, हमें कॉकरोच बताया जा रहा है, हम पावरफुल कॉकरोच है, हमें डर नहीं लगता और इस्तीफा देना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान को. रो रहे हैं मैम, मैंने देखा दूर से खड़े होके कि आप रो रहे हैं. आज वापस जाना है तो थोड़ा खराब लग रहा है. वापस जाना है इसलिए रो रहे हैं? मतलब प्रोटेस्ट में आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा, मतलब पहली बार देश के लिए लगा कि देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, लगा कि ठीक जगह जा रहा है. यहाँ सब इतने अच्छे लोग हैं, सब इतने रात भर यहाँ रह के कोशिश करे कि गवर्नमेंट हमारी बात सुन ले. ये आपको लगता है सरकार सुनेगी इस बात को हमारी? नहीं सुनेगी, हम तो आते रहेंगे ना. अगर नहीं सुनती है तो आप आते रहेंगे. मैंने वही चीज देखी कि आप इतनी वहाँ से देखते हो कि आप रो रहे हैं, तो मैंने क्या आप लग रहा है कि कैसे चोट के जा रहे हो. नहीं, ये आंसू नहीं है आपके, ये हमारी एक जीत है और ये जीत हम जीत के रहेंगे. मैं वापस आऊंगी.
ऐसा नहीं है, बहुत दिन के लिए लाऊंगी वापस, लेकिन बिल्कुल, बस बिल्कुल। खराब लग रहा है। थैंक यू मैम। हमें 9th में ये पढ़ाया जाता है कि हम डेमोक्रेसी क्यों चुनते हैं। इसके पेज नंबर 11 पे लिखा है कि a democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. But there is no accountability. Our government is giving us no accountability. हम उनसे जवाब मांग रहे हैं and वो हमें लाठीचार्ज कर रही है, हमें मार्च तक नहीं करने दे रही, हमें हमारा प्रोटेस्ट तक नहीं करने दे रही। Is this a democracy? और इंसान का रेजिग्नेशन नहीं हो रहा है इनसे। इतने सारे बच्चे जो टीनेजर्स है, ये सारे क्या एंटी नेशनल है? हम सब एंटी नेशनल है। उस दिन लाठी खा के भी आए हैं एंटी नेशनल बच्चे। मेरे घर में मैं सबसे छोटी हूँ, मैं ही 18 की हूँ, मेरे से बड़े बड़े हैं सारे, सब वोट देते हैं, सब बीजेपी भक्त हैं, सारे बीजेपी भक्त हैं। मेरी मम्मी ने मुझे कहा है कि अगर तू गई और मुझे पता चला तो घर में बताना, मैं तो नहीं बता रही। अरे बिटिया, तुमने दिल जीत लिया मेरा, ये देखो। हर मिडिल क्लास से भी नीचे की फैमिली से आते हैं, एक कमाने वाला घर में कैसे कैसे चलेगा? और इतने पेपर लीक हुए, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हमारी मांग है कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो प्लीज इस्तीफा दे दीजिए, बच्चों की जान बचा लीजिए। शर्म ही नहीं आ रही, फेविकॉल से चिपके पड़े बेचारे, निकल ही नहीं रही, कुर्सी से हट ही नहीं रहे हैं। जब इनको वोट चाहिए होता है तब तो पंजाब वगैरह में माताओं, जब इन्हें मित्रों, जब इन्हें चाहिए होता है वोट तब तो ये होते हैं मित्रों, मैंने चाय पिया है, मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा गया, मुझे ये कहा गया, मुझे भाई तू वो है। मुझे एक पुलिस वाली कह रही जल्दी ले जा वरना थाने में ले जाके नंगा करके मारेंगे तुझे। अरे बहन बेटियों को बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, कह रहे प्रोस्टिट्यूट साली यहाँ आ गई, भाड़ में गई, शांति वांति, तुम सारे कीड़े मकोड़ो, ऐसे करके मारा, मुझे गंदी गंदी गालियां दी। 2 पुलिस वाली मुझे अंदर लेके गई, मेरे फोन में से वीडियो, बाद में न्यूज में कोटी वीडियो ये दिखाएगी कि स्टूडेंटों ने किया, ये सिविल वर्दी में घुसे हुए हैं। हमारे इंस्टाग्राम ये लोग बहुत ज्यादा, तो दिखाएंगे। ये लोग इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं, या लड़कियों को बच्चों को कुछ भी नहीं देख रहे। एक बूढ़े अंकल थे, उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा, उनके पूरे खून हो गया और उन्हें पकड़ के लेके गए और एम्बुलेंस में डाल दिया। कुछ भी नहीं देख रहे। एक लड़की को इतना मारा, उसके कान फट गया है यहाँ से, मुझे भी मारा। और जब मैंने इनसे कहा कि आप लोग गाली क्यों दे रहे हो तो कहने लगे चल चल निकल यहाँ से। यहाँ पे मौजूद छात्र के शरीर पे जितने निशान पड़े हुए हैं गवाही देंगे वो दहशतगर्द शब्द के अर्थ का। जो डिक्शनरी होती है उसमें जब दहशतगर्द लिखा जाएगा, दहशत लिखा जाएगा, डर लिखा जाएगा, हिंसा लिखा जाएगा तो दिल्ली पुलिस का नाम बार बार दर्ज किया जाएगा। हम याद रखेंगे कि आपने वो संसद जिसको हमारे वोट से चुने हुए प्रतिनिधि आबाद करते हैं, वो संसद जिससे ज्यादा पब्लिक मॉन्यूमेंट शायद इस देश में कोई ना हो, जब हम उस संसद के पास जाने की कोशिश करते हैं अपनी मांगों को लेकर के, आपने हमारे सर खोल के रख दिए। याद रखेंगे हम याद रखेंगे दिल्ली पुलिस के उन लोगों को जिन्होंने फीमेल प्रोटेस्टर्स के ऊपर उनके प्राइवेट पार्ट्स में बेटन्स घुसाने की कोशिश की। याद रखेंगे हम आपकी हिंसा को। हम याद रखेंगे कि आपको मालूम था कि साथी हमाद 23 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे थे। आपको मालूम था कि उनकी किडनी में ब्लड क्लॉट्स जम गए थे, फिर भी आपने अपने डंडों का इस्तेमाल करके उनका बदन खोल दिया। याद रखेंगे हम। तस्वीरों को आप देखिए, कितनी ताकतवर ये तस्वीर है। अंदर उनके साथियों को शायद डिटेन किया गया है और उसके सामने ये जो लड़की है ये आंदोलन करते हुए नजर आ रही है। अब ये दर्शाता है कि लोगों में गुस्सा नहीं रहा है। ये महिला शक्ति जिसकी बात करते हैं, इसी को देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी का लोग लाडली बहन कहते हैं। और अब वही लाडली बहन जो है वो आ रही है और इन गाड़ियों के सामने खड़ी हुई है। ये युवाओं की ताकत है, यहाँ पर नहीं ले जाने दे रहे हैं। ये एक नई तस्वीर जो है वो सामने आई है, लेकिन ये महिला अकेले जो खड़ी है यहाँ पर, ये एक तरीके से सबूत है कि लोग डरना छोड़ देते हैं, आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये एक आंदोलन है, जो ये तस्वीरें हैं
ये मुझे लगता है मुंबई के लोग याद रखेंगे और बड़े पैमाने पर वो अब भी हैं। कई लोग आए थे गए, लेकिन वो महिला अब भी वहीं पर खड़ी है। अब भी उसी तरह से ये आंदोलन है, चल रहा है। अंदर उनके लोगों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अब भी ये खड़ी है। क्या आपको लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टी की है? जवाब है नहीं, ये देश की युवा है। But one thing I would like to tell today is the Godi media. Watch this. Especially I would like to name Arnab Goswami. The audacity and the hypocrisy of this Modi media, let's say Modi media, they call us anti-nationalists. We are questioning the democracy of this country. जितने भी दल में बैठे हो बीजेपी का जनसी तुमसे डरती नहीं है। क्या नाम है आपका? आप फूल क्यों लाए हो? पीसफुल प्रोटेस्ट हमें रखना है, दैट इज द एसेंस ऑफ इट। इवन दो थिंग्स आर गेटिंग वायलेंट, बट वी हैव टू रिमेंबर कि हमें शांति से करना है। वी आर ओपन टू डायलॉग। सत्य अहिंसा का मैसेज है। डायलॉग एंड पीसफुल प्रोटेस्ट, दैट्स व्हाट वी स्टैंड शांति से बात करना धीरे धीरे छोकरा हो जो रिक्वेस्ट करो जो धीरे 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 नहीं मारते लेटेस्ट नो लेटेस्ट नो हमने क्या किया, क्या है हमारा गुनाह, क्या है? The best part about this protest is everybody is so united. There is no indifferences. Everybody, despite of any religion, any gender, they are bringing food, they are bringing water. So we are feeling very united, and this is very special. गाइस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहूंगी, बट उन्होंने जो आज किया है ना, I mean, मैं इतने दिनों से शांति से रह रही थी और मेरा फीड ना पूरा भर गया हो कि जंतर मंतर में क्या चल रहा है, ऑल ऑफ दैट, एंड आई एम जस्ट सो सिक ऑफ इट, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मुझे फीड बदलना पड़ा अपना। I mean, मैं दूसरे अकाउंट में जाकर रील्स देख रही होगे। तुम प्रधानमंत्री बने हो, यू आर अ प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ अस, क्योंकि हमने आपको वोट किया, और आपको हमने वोट इसीलिए नहीं किया क्योंकि कि आप वहां जाकर बस फॉरेन कंट्रीज में घूमो। नहीं, हमने आपको इसके लिए वोट नहीं किया, हमने आपको वोट किया ताकि आप हमारा ध्यान रखो। मोदी के बाप का देश नहीं है, वाह सिस्टर, हमारा देश है, प्राउड ऑफ ये उनके पापा का देश नहीं है। इसको, हमारे देश को सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिलकर बसाया है, सबने कुर्बानियां दी है अपनी। तो यहाँ पर ही किसी का बाप का देश नहीं है जो वो बोले कि भैया आप जैसों की जरूरत नहीं है। इनको अगर इनका बस चले तो ये तो भारत से मुसलमान भी गायब कर दे, दलित भी गायब कर दे, अपने गिने चुने लोग रखे जो इनके भक्त है, अंधभक्त। हिंदुओं की भी बात नहीं करूंगी, अगर कोई हिंदू भी इनके खिलाफ बोलता है तो इसको भी मरवा देंगे। तो इनके लिए हिंदू भी बड़ी बात नहीं है। बस अगर आप बीजेपी के साथ नहीं हो, अभी देखो ना आपने टीएमसी में क्या किया, खरीद लिया लोगों को। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग, उनको खरीद लिया है इन्होंने। और देखिए उनकी भी क्या गलती, उनको खरीदने के लिए बोलते हैं। अगर आप नहीं बिकोगे पैसों में तो छापा पड़वा देंगे। तो इस तरीके से लोगों को खरीदते हैं। हम चाहते हैं हमारा देश वैसा ही रहे जैसे मोदी के बिना था। हम चाहते हैं हमारा देश विश्व गुरु ना बने जैसा
पहला था। यस, लोग बोल रहे हैं ना कि आप लोग प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल बना रहे हो। पहली बात, एजुकेशन के ऊपर बात है ना, एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर बात है ना, तो मिनिस्ट्री किसकी है, गवर्नमेंट किसकी है, तो बात तो होगी ना पॉलिटिक्स के बारे में। सॉरी, थैंक यू। ये तस्वीरें जो religion. Nobody wants to bring our religion or anybody's religion, but it's just Modi loves to do Jai Shri Ram in every, political agendas और उसके Jai Shri Ram पे ही चल रहे हैं। तो I don't think so कि anybody wanted to bring, भगवान राम मंदिर or whatever the fuck इसमें, but it's just people don't know कि political और education कैसे function करता है, तो इसलिए इसमें जय श्री राम घसीट रहे हैं वो सिर्फ। Absolute end of democracy.